जीएसटी ऑडिट चेकलिस्ट। अगर आप किसी ऑडिटर को ऑडिट करना जाना है, जीएसटी का ऑडिट करने जाना है, तो कौन सी बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? व्हाट थिंग्स दैट ही शुड kept in mind while doing the audit of GST. So first of all, what he has to check, examine the transaction carried out by the entity being qualified as a supply as per section 7 of the CGST Act 2017, and check transaction covered by schedule 1 being made taxable even though the consideration is missing. यानी यहाँ पे उसको ये चेक करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो सप्लाई होता है कि नहीं एज पर सेक्शन 7, और कई ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें कंसिडरेशन मिसिंग है फिर भी वो सप्लाई माना जाता है, तो क्या ऐसा बिजनेस एंटिटी ने कंसीडर किया है कि नहीं, वो चेक करना है एज ए ऑडिटर। सेकेंड थिंग, he has to verify the entity distinguish a particular supply in either supply of goods or services or both, because अगर वो गुड्स हुआ या सर्विस हुआ या दोनों हुआ तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रेट्स ऑफ टैक्सेस, कंपोजिशन स्कीम, सबके लिए रूल अलग अलग है। गुड्स के लिए ये सब अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है, तो इसलिए वो उसको वेरीफाई करना है कि बिजनेस ने सही तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स, कंपोजिशन स्कीम अकॉर्डिंग टू द गुड्स और अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज एप्लीकेबल किया है कि नहीं, दैट एज ए ऑडिटर ही हैज टू check. Then examine whether transfer of goods to another branch located outside the state made taxable. क्या दूसरे स्टेट में उसकी ब्रांच है तो उसको ट्रांसफर माना है उसने, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट में वो उसी का ब्रांच है तो देन इट इज कंसिडर एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, because same business person has different branches in different state, from one branch to another branch in a different state, or from one establishment to another establishment of a same person in one state or in a different state, then it will be considered as a transfer. And now in this case also GST will be leviable. तो क्या उसने वो GST चार्ज किया है कि नहीं, वो उसको देखना है। Then next important thing that he has to verify composite supply and mixed supply. फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि उसको चेक करना है कि अगर कोई गुड्स होता है उसमें कंपोजिट सप्लाई होता है, देयर आर सर्टेन गुड्स ऑन विच व्हेन टू और मोर थिंग्स provided simultaneously and if they are naturally bundled, so then they are considered as a composite supply, and if it is a composite supply then the rate of principal supply will apply on the entire supply. If it is not a composite supply then it is a mixed supply, and if it is a mixed supply then highest rate will apply to the entire supply. So that is about composite supply and mixed supply. So as a business entity he should identify correct whether it is a composite supply or mixed supply to avoid future litigation or to deliver true and fair view about tax liability. अगर गलत तरीके से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपोजिट सप्लाई को मिक्स सप्लाई या वाइस वर्सा, देन व्हाट हैपेंस, लिटिगेशन होगा, चार्जेस होगा, और बिजनेस का जो ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट टैक्स लायबिलिटी डज नॉट रिफ्लेक्टेड. सो दैट इज व्हाई एज ए ऑडिटर उसको चेक करना है कि सही में ये ट्रू एंड फेयर व्यू आता है कि नहीं आता, कंपोजिट सप्लाई उसको कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई है उसको मिक्स सप्लाई ट्रीट किया है कि नहीं, वो उसको चेक करना है. देन नेक्स्ट पॉइंट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चेक करना है कि उसको चेक करना है कि वेदर देयर आर सर्टेन गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 on which reverse charge is applicable. So as an auditor he has to check whether entity has identified those goods or services, and as per section 9 subsection 4 there are if something is purchased from unregistered person then also reverse charge is applicable. So as a auditor he has to identify whether these things are properly taken care by the entity, business entity or not. In this point he has to examine. Next point, examine that the input tax credit has not been availed in respect of purchase made from a dealer opted for composition scheme. और उसको ये भी ध्यान में रखना है
कि उसने क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का बेनिफिट तो नहीं ले लिया अगर उसने कंपोजिशन स्कीम के डीलर के पास से परचेस किया है, बिकॉज आप जानते हो कि इफ एनी परचेज मेड फ्रॉम ए कंपोजिशन डीलर आईटीसी ऑन दैट परचेज इज नॉट अवेलेबल। तो उसी तरह से उसको ये भी चेक करना है कि क्या ऐसा आईटीसी तो उसने नहीं ले लिया है। देन नेक्स्ट वन, एग्जामिन वेदर ए पर्टिकुलर सप्लाई क्वालिफाइज टू बी इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। उसको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है, क्योंकि अगर इंटरस्टेट विल बी ट्रीटेड एज ए इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट विल बी ट्रीटेड एज ए इंटरस्टेट, देन इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, बिकॉज इफ ट्रांजेक्शन is intrastate then CGST, SGST oblique UTGST will apply. If it is interstate then IGST will apply. So that is why a business entity should take care about intra-state transaction and interstate transaction. Now next point, as an auditor he has to examine the time of supply of goods or services in forward charge mechanism and reverse charge mechanism transaction, because time of supply in case of goods and services are different for forward charge mechanism as well as reverse charge mechanism transaction. दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होता है। तो एज ए ऑडिटर उसको ये चेक करना है कि ये सही में ऐसा हुआ है कि नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग फॉरवर्ड चार्ज है या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, उसके लिए उसने सही में सही तरह से टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल किया है कि नहीं, वो उसको चेक करना है। देन examine whether the invoices in respect of supply of goods and supply of services have been issued within due date specified in due सेक्शन 31 में ऐसा है कि इनवॉइसेस कब इशू किया जाता है। तो बिजनेस एंटिटी ने सारा इनवॉइसेस ड्यू डेट में इशू किया है कि नहीं, एज ए ऑडिटर उसको वो भी चेक करना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इनवॉइस ड्यू डेट के बाद इशू किया जाता है और उसमें पेनल्टी लगता है फिर भी उसने कंसीडर नहीं किया, वो भी उसको चेक करना है। आप सेक्शन 31 में डिस्कस किया है मैंने कि ऐसे कितनी सारी बातें हैं कि जो इनवॉइसेस में कब इशू किया जाता है, इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विसेज देयर इज अ डिफरेंट ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइसेस। तो क्या बिजनेस एंटिटी ने सही तरह से ड्यू डेट्स में इनवॉइसेस इशू किया है कि नहीं, वो उसको चेक करना है। देन नेक्स्ट वन, एग्जामिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, तो देन इन दैट केस व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जामिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वो उसको चेक करना है एज ए ऑडिटर। देन एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, दूसरे कंट्री से सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है एज पर जीएसटी रूल्स। नॉर्मल वैल्यूएशन रूल्स विल अप्लाई। वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स रूल्स विल नॉट अप्लाई एज द कस्टम्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। यानी अगर गुड्स है तो उसके लिए कस्टम्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट में गुड्स का वैल्यूएशन के लिए असेसेबल वैल्यू कैसे निकालना है, लैंडिंग चार्जेस ऐड करना है कि नहीं करना है, दोस थिंग्स आर गिवन इन द कस्टम्स एक्ट। बट अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो उसमें जीएसटी का जो वैल्यूएशन रूल है वो अप्लाई करके क्या सही में बिजनेस एंटिटी ने सही तरह से बिजनेस वैल्यू एंटिटी ने उसका निकाला है कि नहीं, वो उसको चेक करना है। देन एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई and examine the taxable value of supply in case of related party transaction. The ultimate purpose of detailed examination is to ensure that related party transaction have been carried out at arm's length price. Now इसमें क्या है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में हुआ है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इन्फ्लुएंस बाय सर्टेन केसेस। वो इन्फ्लुएंशियल प्राइस होता है, इट माइट बी देयर, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, but it might be possibilities there price is influence. So as an auditor he has to check that transaction value is carried out at arm's length price, normal price जो दूसरे लोगों को सेल किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, वही वैल्यू कंसीडर किया है कि नहीं, वो उसको कंसीडर करना है। एग्जामिन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। देन उसको ये चेक करना है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, उसके लिए वैल्यूएशन रूल्स है। सेक्शन 15 में सारे वैल्यूएशन रूल्स दिए गए हैं, कौन सी चीज इंक्लूड करना है, कौन सी चीज एक्सक्लूड करना है, कितना प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन और नॉट,
वो उसको चेक करना है। प्राइस के साथ कुछ और तो नहीं कंसीडर किया है, वो उसको चेक करना है एज पर 16 सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में जो वैल्यूएशन रूल्स दिया है, वो सारा वैल्यूएशन रूल उसने फॉलो किया है कि नहीं, वो उसको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट में उसको ये चेक करना है कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली अवेल किया है कि नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशन। पहला कंडीशन है उसके पास इनवॉइसेस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या तो फिर उसके पास गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए, और डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। The tax charge on supply is paid to the government by way of cash or by utilizing credit ledger. एक्चुअल में टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, एंड ही हैज फर्निश्ड अ वैलिड रिटर्न। अगर वैलिड रिटर्न भरा है तो उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही उसको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वो आईटीसी क्लेम कर सकता है? So that documents are an invoice issued by supplier of goods or services, bill of entry, invoice raised by recipient in case of inward supplies from unregistered person, or reverse charge mechanism supplies, ISD invoice by an input service distributor credit, a debit note issued by a supplier of goods or services। तो ये इस तरह से ये इनवॉइसेस है जिसके बेसिस पे से वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। एक तो इनवॉइस है, बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट इशू किया जाता है। अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, दैट मींस अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है और रिवर्स चार्ज है, तो उस केस में रेसिपिएंट इशू करता है इनवॉइस, तो वो भी उसके बेसिस पे से भी आईटीसी क्लेम हो सकता है। अगर आईएसडी है तो आईएसडी का इनवॉइस इशू करना है, क्योंकि अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आईएसडी इनवॉइस शुड बी मस्ट बी देयर। अ डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर डेबिट नोट इशू किया है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिन दैट द एंटिटी हैज रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट along with the applicable interest in case payment is not made to the vendor within 180 days from the date of invoice। यानी अगर आईटीसी को रिवर्स करना है, एग्जामिन दैट द एंटिटी हैज रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट along with the applicable interest in case payment is not made to the vendor within 180 days। यानी 180 डेज के अंदर अंदर वेंडर को पेमेंट नहीं किया तो फिर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। Examine that the entity has re-availed the input tax credit when the payment is made to the vendor in the above cases। अगर पेमेंट कर दिया तो वापस आईटीसी का री-अवेल कर सकते हो, बट अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Verify that the entity has availed the benefits of input tax credit and depreciation both on the tax component of the capital goods and plant and machinery। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में कि अगर आप टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी इफ द डेप्रिसिएशन ऑन द said tax component is claimed under the provision of Income Tax Act 1961 by the taxable person। यानी अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, देन इन दैट केस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन टैक्स कंपोनेंट। अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक का आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा बिजनेस एंटिटी उसने ऐसा सेम प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, एज ए ऑडिटर उसको ये बातें चेक करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में उसको ये चेक करना है, एग्जामिन दैट द आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दिया जाता है आईटीसी में, उस टाइम लिमिट में उसने आईटीसी का क्लेम कर दिया है कि नहीं, वो भी उसको चेक करना है। देन एग्जामिन दैट आईटीसी इज नॉट क्लेम्ड in respect of tax paid on purchase of material or services which have been used for supply of exempt supply। यानी अगर कोई exempt supply है तो उसके लिए आईटीसी नहीं मिलता।
If goods is partly used for personal purpose and partly for the business purpose, then proportionate credit is available. Then he has to verify whether proportionate credit is claimed by the business entity or not. If it is partly used for taxable supply and partly used for exempt supply, in that case also he has to verify whether the proportionate credits has been availed or not. Then check that the input tax credit has not been availed on the taxable goods which are given by way of gift or free sample under the sales promotion. अगर उसने सेल्स प्रमोशन में कोई ऐसा गुड्स है जो ऐसे फ्री सैंपल दिया है या गिफ्ट दिया है, तो उसका उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है ना, ऐसा उसको चेक करना है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिन दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रेंट ए कैब, life insurance, health insurance have not been claimed as per section 17 subsection 5 of CGST Act 2017. ये ब्लॉक क्रेडिट की सब बातें हैं कि उसने रेंट कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब पे उसने क्रेडिट तो नहीं ले लिया, उसको चेक करना है एज ए ऑडिटर. Examine that input tax credit has not been claimed in respect of inputs which become scrap or waste. जो इनपुट स्क्रैप और वेस्ट बन गया है उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है कि नहीं लिया है, वो उसको चेक करना है. नेक्स्ट पॉइंट, इफ आईजीएसटी इज चार्ज इन ए बिल, आईटीसी इज नॉर्मली अवेलेबल इफ द सेम इज परचेज फॉर द बिजनेस पर्पस. However, if CGST and SGST are charged in a bill, then ITC is available only if CGST and SGST belong to the same state. यानी IGST अगर बिल में चार्ज है तो उसका क्रेडिट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट अगर आपको CGST और SGST का क्रेडिट चाहिए तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. तो ऐसा सेम हुआ है कि नहीं, एज ऑडिटर उसको चेक करना है. देन नेक्स्ट वन, examine that unlike the earlier laws, excise and VAT, ITC has been availed in respect of all the capital assets except restricted under section 17 subsection 5 of CGST Act 2017, meaning that all the capital assets are eligible for ITC provided that they are used or intended to be used for the business purpose. For example, plant and machinery, furniture, computers, laptops, mobile phones are eligible for ITC if they are purchased for the business purpose. यानी अगर मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इफ दे आर गोइंग टू बी यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, देन आईटीसी इज अवेलेबल. तो अर्लियर लॉ में भी मिलता था, अभी भी मिलता है. तो क्या ये उसने सारा कंडीशन फॉलो किया है कि नहीं, वो उसको चेक करना है. एग्जामिन दैट प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली व्हाइल अवेलिंग आईटीसी. उसको चेक करना है कि प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी में ऐसा रूल है कि प्लांट मशीनरी मींस apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू द अर्थ और फाउंडेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. यानी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जो अर्थ या फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज बनाने में जो भी खर्चा है उसको आईटीसी मिलता है. बट इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स, यानी लैंड, बिल्डिंग एंड एनी सिविल स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये सब का क्रेडिट नहीं मिलता. तो ये सारी बातें उसको कैपिटल चेक करना है एज ए ऑडिटर. इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज गिव दिस वीडियो a thumbs up. To see more videos like this, make sure that you hit the subscribe button. If you want me to cover any other topic on this channel, write it in the comment box. This was all I have today. Hope you like it. Have a nice day. Bye.